Yeah, 5 minutes. Yes. Aarti ma'am, should we? Yes. Please. Arti, you joined from two devices. No, one device. Oh, yeah. Two devices are looking there. On screen. My compliance person would have joined. Okay. Okay, ma'am. Yes, good morning, dear members. I, CA Karan Chandwani, would like to welcome you on behalf of Pune branch of WIRC of ICAI for this webinar, for this interactive session on investor awareness program on communication with money. We have a speaker today, Mrs. Aarti Rathi ma'am. Ma'am, welcome to the session. Thank Before you. starting with the session, let me also welcome the chairman of Pune branch, CS Samir Ladda sir. Sir, I would request you for your opening remarks before starting with the session. Over to you, sir. Well, thanks, Karan. Today's speaker, Mrs. Aarti Rathi, my co-chairman in absentia, Sri Kashinath Pathare, will be expected to join soon. Today's MOC, Karan Chandwani, all senior members in the professional, and my dear professional brothers and sisters. Maximization of wealth is always a motive of any successful person. Though money is not the only criteria to evaluate your success, no doubt it is one of the most important criteria for evaluating your success. Every client also looks after from his or her CA to help to increase the wealth. This year we are celebrating, we means Pune branch celebrating its Diamond Jubilee year and working on working on the image of E Square, that is ethics, e-governance, expansion, and expertise. One of the E, that is expansion, it is itself shows that through expansion, through networking, we want to increase the wealth of every member of institute. So today we have one of the expert speaker, Mrs. Aarti Rathi, who will speak about money, how to earn money, how to keep money, and how to increase the money. So thank you, Aarti, for giving your valuable time to Pune branch of ICAI. I welcome again all the members. Wish you happy learning. Over to Karan for further process. Thank you, Chairman, sir. So before handing it over to Aarti ma'am for the session, I would like to introduce her first. So she is a certified financial products distributor and solutions professional, taking pride in helping many people structure their financial affairs successfully. With an MBA in finance, she has been in financial services since 1999. During this time, she has gained extensive financial industry experience in pre and post retirement, estate taxation, and investment planning. She is focused on assisting clients achieve their lifestyle goals through astute strategic counsel and life plan techniques. With this brief introduction of you, ma'am, I would request you to start with this session. Over to you, ma'am. Thank you very much, sir. Hi, guys. So today I'm talking about money, and we all have money within us, and we all leverage our time to earn money. If I'm wrong at any given point of time, please do raise the question. And even in case if you people feel that there is a question coming up which is not solved, in between also you can interact and give a chat or raise your hand so that we can entertain you. So before going with the session, there are few things which the statistic study shows from a Deloitte, one of the big four. Out of in a day, we almost check our phones for 150 times. So I don't believe we will do the same for the 2 hour session, what we are actually giving. And in this 2 hour session, I'll definitely try to give you a gist of money making and creating wealth for you, not only for you, but also for your clients. Because we always believe if we give some value added things to our client, they will definitely be stick to us for the entire term. So how can we give a value added services to our client as well as to us, so that we always have a second source of income placed intact? Now, why I am talking a second source of income placed intact is like COVID has shown us it is very much required. What exactly the thing happens with India? In India, the things are very simple. For first 25 years, we always hear no from our parents. And
post 25 year, after that, we always try to overcome the no's by, well, because we have our own earning source. Either we go for a job, or we have our own businesses, or we have some sort of a business venture coming up, and we try to earn money for ourselves. As and when we earn money for ourselves, we always have a mentality to convert all the no's into yes. By doing so, we forget the difference between need and want. कि वो जो no को हाँ में convert करने की actually जरूरत है, is it a required thing or just to have it because I was having a thought process कि मुझे वो चाहिए. ये चक्कर में क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने हमारा एक इनकम इधर है और हमारे एक्सपेंस यहाँ हो जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑलवेज ट्राई टू पे द बिल्स rather than making money for ourselves. We make money to pay the bills which we have actually turned on because of the difference we didn't understood between the need and want. So this is the thing, we earn, we expense, फिर एक लाइबिलिटी बन जाता है और हम वो लाइबिलिटी को रीपे करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लाइबिलिटी हो, चाहे कोई लोन हो, चाहे आप कार लोन लो, बाइक लोन लो, गैजेट्स बाय करने का लोन लो, any damn thing what you buy, you have to pay interest, which actually makes a worry for you, and you pay the things because of that obligation. तो unnecessary आप एक वो इमोशन होता है ग्रीड फियर वाला, उसमें चले जाते हो. ग्रीड हो जाता है क्योंकि मुझे वो चाहिए, फियर होता है कि मैंने बैंक से लोन लिया है, वो मैं रीपे नहीं करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा. तो फिर वो जो फियर के चक्कर में हम कमाने लगते हैं, एंड वी एंटर अ रैट रेस. वी कॉल दिस एज अ रैट रेस कि वी गेट अप, we earn, we pay the bills, we sleep. अब क्या होता है कि as you all are from a professional background, we have a tendency to manage the assets and liabilities. If anyone can actually say what is asset and what is liability, it would be great for me. If anyone can unmute yourself and talk. I think Aarti, participants can't talk here. They can only write in the question and answer. Fair enough. Yeah. Okay. So They sir, can write in the, if anybody want to write something, they can write in question and answer tab. that sounds great. If anyone has an option coming up ki this is an asset and this is an liability, I would definitely love to hear this. For if you ask from my point of view ki what is assets and what is liability, Mr. Niranjan Pandit has given the answer. yes, Assets I'm are, not able to actually view. assets are those which create value for future, which can make us money in future. Other answer is that that which generates more revenue. Mr. Dhananjay want to say that asset is a resource controlled by any entity to arise from past event. Okay. Very well said, sir. Assets are really an entity which brings money to your pocket, and liabilities are the entities which pull out money from your pocket. So for me, if you say buying a home is a liability, whereas a home which is on rent and which gives me an income is an asset. So today, you all have to analyze yourself if you have a home and if you're paying an EMI for it. So it's an asset or it's a liability. As per the accounting standards, yes, it will go with the assets, but as per wealth creation standard, it will be a liability. Same way, if a gold, being a female, I'll just try to explain you about the gold. When you buy a gold jewelry, you always buy a latest design for yourself. And you keep it in a locker. You don't wear it every day. Then what? You have to pay the charges for the locker as well. After 4 to 5 years, when you think I need to wear that, and you see कि नहीं यार वो थोड़ा गंदा हो गया, उसको पॉलिश कराना है. कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार इसका डिजाइन पुराना हो गया है, I need to revamp it. So again, it is a costly affair. So for me, buying a gold which is not in a current use and it can't be used and consumed on a regular basis, it's an liability. Because in India, selling real estate and selling gold means आपका बहुत बुरा वक्त आ चुका है और हम वो चीज करते नहीं.
क्योंकि हमारा ये माइंडसेट है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हाट वी बाय इज यूज्ड फॉर अ, is not at all used for the consumption purpose. It is used for the, can anyone explain me? It is used just to have an part of a saving to be parked. But हम जब जरूरत होती है ये सेविंग्स को यूज नहीं करते हैं. यहाँ तक if अब इसका सोल्यूशन क्या है? When we have a painters in our home, we ourselves might be a good painters. तो अगर कोई इमेज इमेजिन करते हैं कि मुझे ये पिक्चर ड्रॉ करना है, तो एक ब्रॉड स्ट्रोक दे देते हैं एंड देन वी ट्राई टू ओवरकम ऑल द थिंग्स एंड मेक अ फाइनल पिक्चर. सर अगर वो ब्रॉड स्ट्रोक देके आपको फाइनल पिक्चर बनाना है और उसमें अगर कुछ किंतु परंतु होता है तो वो फाइनल पिक्चर कभी नहीं बनता. जस्ट लाइक अगर आप I'll give you an example of Yudhishthir from Mahabharat. He was a very good leader and उसको पता था कि उसको अंत में जाके वो हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठना है. पर the path was not that simple as it was. उसको बीच में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे ups and downs आए. So he had an option whether to act or react. So वो बंदे ने क्या किया कि जैसे वो स्टोरी मिला उसको, जैसे राइट किया गया था, जैसे डायरेक्टर ने बोला, he acted, he didn't reacted at any given point of time. So on the acting part and following the process, he went and sat on the throne of Hastinapur. So ultimately sir, आपके पास जो उसके पास एडवाइजर था, कृष्ण था, उसने उसको एक प्रॉपर सलाह दी, एक राह दिखाई. He overcome all the hurdles and finally all the 5 brothers sat on the throne and they had a very good life. Now, आप उसको एनालाइज करो ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड. अगर किसी ने इक्विटी में पैसा लगाया है, किसी ने एफडी में पैसा लगाया, किसी ने रियल एस्टेट में लगाया, किसी ने गोल्ड में लगाया, सो डिड यू फॉलो द प्रोसेस फॉर मेकिंग मनी? इफ यस, वेरी गुड. इफ नो, आप खुद एनालाइज कीजिए क्योंकि अभी भी टाइम गया नहीं है. Because in India, the challenge would be a 30-30 challenge. Yes, I will come on the 30-30 challenge, what exactly it is, and where my role would be there to serve you as well as your clients with a value-added services. Just a moment before after you proceed. If any participants want to talk online or and make the question, want to speak, please raise your hand in chat box so that we can allow you to speak. And I acknowledge the presence of Sri Ruta Chitre, ex chairperson of Pune branch. Am I clear, Aarti? Yeah, thank you, sir. That would be great for me. Aarti, this is the picture in front of you. Chat box, right? Or is it able, if you can just check if you're able to check the chat box and the Q&A box? I'm actually not able to view any sort of questions. I have received only one question by Mr. Pankaj Narayan. Okay. Invested money out of which we can make money. Yeah. No, Aarti, one is saying that there is chat box also, chat again with question and answer. One more tab, there is chat. So people may raise hands in chat box. At that time, we will unmute the person so that he can speak to you. Okay, fair enough, sir. So this is the picture right now which is in front of you. आप इसके साथ क्या एनालाइज कर सकते हो सर कि what exactly is coming into your mind? You are wearing a relaxo shoes or Bata chappal or Liberty chappal. Your kids are using Pidilite products. You have a fan made of Havells, Bajaj or Copran grills. You have an AC of Hitachi, Blue Star or Voltas or any other company. You have all these products which you are consuming. Am I right? Yes, sir. So if you are a consumer of this product, are you a producer of this product? Can we as an individual have a setup of each and every industry and make a part of our own profit shareholding by consuming only one AC or two AC or 5 chappals? So it's practically not possible. So over here, we are
to make you understand the concept of having an investment based philosophy in multiplying money. Right now, what we have with us is a product to add money. We are focusing on the product to multiply money and focus on real returns. So real return पे focus करना है तो उसका formula बहुत simple है. Whatever interest or dividend you are earning, उसमें से आपको inflation minus कर देना है और फिर जो बचता है वो आपका real return है. So even if you say कि I have XYZ with me or I am earning so and so from you, so that means there is a call कि you have to have a product CAGR कि उसमें कितना मिला कितना नहीं मिला and उसमें से inflation को आपको minus कर देना है. So if you ask me for a FD purpose or for a PF purpose, what is the interest rate they are fetching? 7% or 8%. उसमें से inflation minus कर दीजिए. It is a 6% minus. So remaining is 2%. So you have to analyze आप पैसे को add कर रहे हो, पैसे को multiply कर रहे हो. So every product has and when same thumb rule, same calculation. So one day to make money, we need to be an investor. Think big. आपको जो मैं बता रही हूँ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई ही करता है. And everyone has their own capacity to do it. And for believe me, 24 hours सबके पास है. आपके पास 24 hours है, मेरे पास 24 hours है. Everyone big entrepreneurs have 24 hours. So God has given the equal time. It's up to us how to manage our time to make it more consumable and give full time for our family, beside having a financial independence. So think on a bigger part कि शार्क टैंक है कि अब मेरे पास 24 घंटा है, मैं वो 24 घंटे को कैसे यूज करूं कि मैं पैसा भी बनाऊं, हैप्पीली जीऊं, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, मैं टाइम लिवरेज कर रहा हूं, उसके सामने जो कमा रहा हूं वो मेरा पैशन रहे, वो मेरी वो कॉल्ड एज रैट रेस वाला सिस्टम ना रहे, बिकॉज आई हैव अ चैलेंज 30-30 कमिंग अप. नाउ आई विल कम ऑन दैट पार्ट. सो हैव अ शार्क टैंक विद इंडियन पर्पस. आप इंडिया में अगर हो तो इंडिया का शार्क टैंक ढूंढो. तो दिए है, यू नो दीज टू पीपल, अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान. Yeah, they are very good actors and we know them. सब ऑलमोस्ट आधे लोगों के तो यहाँ पे फेवरेट हो चुके हैं, अमिताभ बच्चन सबके होंगे. सो या दीज टू. अब इन्होंने क्या किया, इनके पास 24 घंटा है. दे आर वेरी गुड नोन फॉर देयर ओन फील्ड, दे इन द एक्टिंग फील्ड, फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम है. एंड एवरीवन लव्स देम एंड एवरीवन लव्स टू हैव अ वर्क विद देम, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक वैल्यू ऐड मिलता है. हर एक्टर हर एक्ट्रेस चाहती है कि इन दोनों के साथ काम करें, क्योंकि उनको एक वैल्यू ऐड मिलता है उनके फील्ड में जाके, वो एक लेवल अप हो जाए. सो आवर क्लाइंट ऑल्सो थिंक्स द सेम वे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं ताकि मैं एक लेवल अप हो जाऊं. क्या किया इन्होंने? यस, beside ABCL, beside having a political failure, he is having an investment in all these companies. So this fellow also knows, if beside having my own career जहां से मेरा source of income है, मैंने अलग जगह पैसा डाला है, which created a second source of income for me. And same thing is with him. आज बिटकॉइन पे लोग, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बोला है, but he analyzed the risk and he went ahead. Same way कोलकाता नाइट राइडर्स, जब IPL लॉन्च हुआ था, we never knew the future of IPL की क्या होगा, but आज आप देख सकते हो, it is one of the best business ever in the industry going on. So it is they have become an investor. क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो 97% people are self-owned or they are employees, whereas only 3% people are investors or are business owners. Business owners मतलब वो होता है जिसके नीचे करीबन 500 एम्प्लॉइज हैं. वो बंदा अगर ऑफिस में भी नहीं आएगा, उसके बावजूद उसका बिजनेस 20% हर साल ग्रो करेगा. दैट इज बिजनेस ओनर. Every business owner has this kind of strategy, whereas being investor is more easy, क्योंकि आपको ना कंपनी फॉर्म करनी है ना सेट करना है, आपको वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है. अब वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के बहुत से अपने अपने तरीके होते हैं, which we will cover up.
अब यहाँ पे क्या हो गया कि दे बिकम एन इन्वेस्टर. अगर आप वही पैसों का ग्राफ देखोगे ना, वो उल्टा है. सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय के पास पैसा कम है, वेयर एज बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास पैसा ज्यादा है. बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय लुक रिच और बीइंग रिच वाले कैटेगरी में. ऊपर वाली जो कैटेगरी है वो सिर्फ बीइंग रिच है, उनको दिखाना नहीं है किसी को. आपने कभी देखा है कि उनके पास जरूरत है तो ही उन्होंने गाड़ी खरीदी है, वरना खरीदी भी नहीं है. दे आर हैप्पी विद फिएट. वॉरेन बफेट, he is happy with fiat, he is happy with 2 BHK, but we aren't. We always follow the philosophy of looking rich. They follow the philosophy of being rich. तो लुक रिच फिलोसॉफी में जब जाते हैं तो हम रैट रेस में घुस जाते हैं. These are our agendas. हम नॉर्मली हम पैसा चाहते हैं. पैसा क्यों चाहते हैं? Yes, there is one person who is raising hand. धनंजय जी. Shwetali ma'am, if you can just unmute him. Yes, sir, you talk now. Yes, धनंजय जी. Dhananjay sir, audible to you? No. Dhananjay sir, you want to talk something? No, there Ma'am, I is some think there is network some issue with him. problem. I think you can continue ahead. One more person has raised the hand. Shwetali, can you watch who is raising the hand? Shwetali? येस सर, मी ऍक्च्युली केलं पण तिकडून त्यांचा आवाज काही येत नव्हता. आता मॅम भूमी म्हणून कोणीतरी मॅम आहे, त्यांनी पण केलाय पण त्यांचा आवाज नाही येते. You can दोघांनी write raise on the hand chat box if the things are. I'll continue. I would request अगर आपका आवाज नहीं आ रहा है तो आप chat box में message type कर दीजिए और you pass a message to the coordinators so that they can read it out in the forum. These are all the sectors where we need money. Maybe retirement, car, child education, marriage, home, emergency, vacation, family obligations. Even now there is a call for a social obligation. कि मुझे इतना पैसा तो चैरिटी करना है और मुझे उसके लिए प्रोविजन करना है. ये भी आजकल प्लानिंग होता है. और एक प्लानिंग और होने लग गया है कि वी नीड अ पार्किंग फॉर अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम so that my second source of income is also well managed in my 30-30 challenge. Now we are on what exactly the 30-30 challenge would be, right? आप बोलोगे कि मैडम सब समझ में आया. Every client has a very different need and necessity for their money. किसी का रिटायरमेंट के लिए कुछ और थॉट प्रोसेस होगा, तो किसी का वो पैसे से रिलेटेड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का थॉट प्रोसेस कुछ और होगा. या कोई बोलेगा कि मेरे पास बहुत है, मैं उसको कैसे ट्रांसमिट करूं फॉर माय सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. So for every individual, money has a very different parameter to play. पर उसके साथ ये सब चीजों के साथ में हमको इन्फ्लेशन, ये जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखना है. इन्फ्लेशन धृतराष्ट्र है, एक अंधा प्राणी है जो सिर्फ एक ही कान से सुनता है, उसको दूसरे कान का सुनाई नहीं देता. और जब वो एक कान से सुनता है, आंख से देख नहीं सकता, तो उसके लिए हमारे तरफ से बोला गया कभी भी वर्केबल नहीं रहता है. So we have to plan him and we have to manage him. We can't say कि तुम मेरा सुनो, वो नहीं सुन सकता, वो सिर्फ उसका सुनाता है. So whenever you talk with money, talk about inflation at the utmost priority. नहीं तो आप पैसा सिर्फ ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कभी नहीं कर पाओगे. ठीक है? उद्या आहे ना, तुम्ही आलात ना तर मेलवर पाठवून चालेल. Samir sir, you want to say something?
Just a moment. No, just a moment. Arti, sorry, disturbance. Please continue. Yeah. So, and finally, with the mutual funds or with the equities, there is a part of a portfolio which gets segregated because of some or the other issue. आपके पास वो भी नॉलेज होना चाहिए कि वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के लिए मैं कैसे बाहर निकलूं और कैसे उससे एग्जिट लूं. नाउ if it is a core expert area, well and good. If no, how can we help you and your client to manage it? Simultaneously, I want to focus on what we can't do. इसके साथ इसके अलावा हम सब कुछ कर सकते हैं. What we can't do, हम आपको कोई भी टिप्स नहीं दे सकते, कोई स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते. हमारे पास कोई, वी आर नॉट अ स्टॉक ब्रोकर्स, हम ऐसा कुछ काम नहीं करते. साइमल्टेनियसली मैं कोई बैंक नहीं हूँ, कोई ट्रस्ट नहीं हूँ, मेरा खुद का कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कुछ नहीं है. वी आर नॉट अ प्रोड्यूसर, वी आर अ वेल्थ एग्रीगेटर. हम आपको बताते हैं कि पैसा कैसे बढ़ाना विद द राइट प्रोसेस टू मैनेज वेल्थ एंड क्रिएट वेल्थ. साइमल्टेनियसली हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमको पहले वो बेचना है, क्योंकि हमारे लिए क्लाइंट फर्स्ट है, प्रोडक्ट सेकंड है. अगर क्लाइंट के पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है ही नहीं तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो. बट अगर साइमल्टेनियसली मुझे ऐसे लगता है कि क्लाइंट को ये प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कन्विंस हिम कि सर दिस इज द प्रोडक्ट यू नीड इन योर एसेट क्लास एंड यू नीड टू फोकस ऑन इट. डोंट हैव अ क्लोज माइंड एटीट्यूड फॉर दैट. और ये भी हम बताते हैं, चाहे फिर वो हमारे पास हो या हमारे पास ना हो, हम उसके ऊपर आपको एडवाइस पक्का देंगे. अभी इंटीग्रेटेड पैसा बनाना है ना, सब जगह एक ही है, क्योंकि पैसे का कलर भले ही अलग है पूरे दुनिया में, पर पैसा बनाने का रूल एक ही है पूरे दुनिया में. वो रूल बहुत सिंपल है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमारा एक सोचना है. अब क्या होता है कि जब आपसे क्लाइंट बात करता है कि मुझे फलाना काम करना है, मुझे ये करना है, सो देयर इज अ वेरी रिगरस फाइनेंशियल प्लानिंग व्हाट वी फॉलो. और वो एनालिसिस करना जरूरी होता है, because at that part only we try to analyze ki what is risk associated with the client. See, there are many people who fill up the risk analysis form. आप मुझे बता दो कि आप भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के साथ टच में आए होंगे जो काम कर करके इतना थक गए हैं और वो बोल रहे हैं कि यार मैं बोर हो गया हूँ, और मेरे फ्रेंड का कल एक्सीडेंट हो गया, उसका पाँव टूट गया एंड ही इज बेड रिडन फॉर 2 months. कभी कभी लगता है कि ऐसा हो गया तो बेटर है कि 2 महीने की तो शांति होगी, क्लाइंट फोन नहीं करेगा. बट ये जो वाक्य है, अगर वो क्लाइंट के साथ सेम होता है, दैट पर्सन सेज या टुमारो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर मी, और ये एक्सीडेंट बहुत गलत टाइम पे हुआ है. एंड वी ऑलवेज कम अक्रॉस विद सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो रिस्क एनालिसिस इज नॉट अ एक्चुअल क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड अ क्लाइंट्स रिस्क. वो आपको उससे बात करके ही समझ में आएगा. सेकेंड थिंग क्या है कि आप कितना भी आप ये कर लो, इन इंडिया हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि वो हमको फोर्स करता है कि आप सिर्फ राइट आंसर दो. रॉन्ग आंसर दिया तो 0 मिलेगा. तो हम लोग इतने ट्रेन हो जाते हैं कि हमको सिर्फ राइट आंसर ही देना है, क्योंकि रॉन्ग आंसर दिया तो टीचर डांटेगी और पेरेंट भी डांटेगा. तो जब भी मैं रिस्क एनालिसिस फॉर्म दूंगी, वी आर वेरी यूज्ड टू इट एंड वी विल ऑलवेज सिलेक्ट द आंसर्स व्हिच आर वेरी गुड एंड शोज अस हाँ यार ये बहुत एग्रेसिव बंदा है और इसको सब समझता है. तो ये हमें हमेशा ले डूबता है. एज पर नॉर्म्स, यस वी फिल अप द फॉर्म, बट वी विल गिव आवर एडवाइस टू द क्लाइंट्स कि ये आपकी जरूरत नहीं है. आप अभी पहले साल 1.5 साल ऐसे काम कीजिए. वंस यू आर यूज्ड टू विद द मार्केट, वंस यू अंडरस्टैंड द आउटकम्स ऑफ द मार्केट, then you enter full rigorously. वो आपके लिए बेटर हो जाएगा. अब इसके साथ हम क्या करते हैं, क्लाइंट का रिटायरमेंट प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट एस्टेट प्लान करते हैं, फिलॉन्थ्रोपिक गोल्स मैनेज कर लेते हैं, उनके इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं, जो कि एक प्रोसेस्ड वे में होता है और लॉन्ग टर्म वे में होता है, जहाँ पे वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे कोर एरियाज आते हैं विद अ वेरी गुड वेल्थ प्रोसेस मैनेजमेंट, जहाँ पे डेविएशन हम नहीं करेंगे बिकॉज वी आर वेरी मच होलिस्टिक विद आवर प्रोसेस और हम प्रोडक्ट बायस्ड काम नहीं करते हैं. सो
what exactly the things we always follow. We always say कि क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में जो भी आपका प्रोडक्ट आता है वो हम फॉलो करेंगे, सिंपल स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे which a client understands and which we understands, and we always love कि client और हम दोनों same page पे रहे. So even if you want to be the thing, we always believe कि you and me should be on the same page to understand your money. एक बार आप उसको समझिए, बिलीव मी, आप जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे आपका पैसा आपके साथ उतना ज्यादा कम्युनिकेट करेगा और वो आपके लिए 24 घंटा 365 दिन काम करेगा. Now, what we can do besides the client forte, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो आप आइए. Do you know these two people, Zomato and Swiggy? अगर पता है तो प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए. Don't Google it. If you can unmute yourself or you can chat box में डालिए ना. फूड सप्लाई करता है. वेरी गुड धनंजय जी. Anyone else who can actually pull up? I have saw 3 to 4 hands coming up. So ultimately they are food suppliers for us, right? So they are a restaurant aggregators. जो क्या करता है, रेस्टोरेंट वाले के साथ जाता है, बात करता है, निगोशिएट करता है, फिर अपने को एक पर्टिकुलर इसमें सप्लाई कर देता है. Fair enough. So they try to be an aggregator between a restaurant and the end consumer. So what is aggregator? Can anyone? It's a company who negotiates, ठीक है, for the service and utility on the behalf of groups of consumers. मैंने पढ़ा इसमें से. So this is a very good aggregator definition. What exactly thing is? So it is accessing the combined strength and the numbers. जहाँ पे वो negotiate करता है. Because of this, what we are an online aggregator with our industry, where we give you online service for even eKYCs, even an online service to buy any sort of a financial product. We have an online platform. So we are also an aggregator for you, where we negotiate with the producer कि नहीं सर ये फंड में ये इशू है, वो स्टॉक्स में ये इशू है, या वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्लान में ये प्रॉब्लम है. We need to overcome that and we need to give a very exclusive and a very good solution to our customers, जहाँ पे उसको उसका hard earned money के लिए पेन ना हो. ठीक है. And before this, we are also an investor first rather than being an advisor. So if you ask me कि आरती तेरा पैसा है, मैं बोलूंगी हाँ मेरा पैसा है. So जो प्रोडक्ट्स हम हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, फर्स्ट वी ट्राई टू बी द इन्वेस्टर. अगर मैं मेरा पैसा वो प्रोडक्ट में लगा सकती हूँ तो मेरा क्लाइंट भी आराम से लगा सकता है. बट अगर मैं मेरा पैसा वो प्रोडक्ट में नहीं लगा सकती तो वी डोंट एडवाइज आवर क्लाइंट टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो हियर कम्स द 30-30 चैलेंज. If anyone can give me a bit just इतने देर में अगर कुछ आया कि 30-30 चैलेंज क्या होता है, अगला स्लाइड तो पूरा एक्सप्लेन कर ही देगा कि 30-30 चैलेंज क्या होता है. इंडिया के लिए वो बहुत जरूरी है. इंडिया नीड टू फोकस ऑन 30-30 चैलेंज, दैट टू आवर जनरेशन, क्योंकि हमारे जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. Sir, we have 30 years to earn for remaining 30 years. क्योंकि हमारी लाइफ का जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ चुका है. अगर हम ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमको ज्यादा पैसा लगने वाला है टू ओवरकम ऑल आवर एक्सपेंसेस. एट दैट पर्टिकुलर एज हम नहीं बोल सकते कि मुझे मेरा इनकम कम करना है या मुझे मेरा एक्सपेंस कम करना है. इनकम तो कम होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर. बट वो एज पे जाके हम नहीं बोल सकते कि मैं जो लाइफस्टाइल जी चुका हूँ उससे मैं 2 कदम पीछे हूँ. वहां पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है. सो हाउ टू हैव अ प्रॉपर वर्किंग ऑन योर 30-30 चैलेंज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिकॉज धृतराष्ट्र जो है वो पिक्चर में आ गया है. आपको दिख रहा है कि मैंने अगर 1963 में अगर 5 लीटर पेट्रोल 3 रुपए में लेता था तो आज
21 में it is roughly 465. Do anyone of you remember the movie गोलमाल? पुराना वाला, आलोक पालेकर वाला. उसमें उसकी सैलरी किसी को याद है? Keep it to yourself. वो सैलरी में आज अपने पास अपना ऑफिस बॉय भी काम नहीं करेगा, पर उसने वो सैलरी में मैच भी देखने गया, एक गर्ल को हायर किया, बहुत सब कुछ कर लिया इन दैट सैलरी, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज, अब ये थोड़ा हम रेस्टोरेंट्स पे आ जाते हैं बिकॉज वी लव टू बी हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड. सो दिस इज द कॉस्ट एक्चुअली वी आर बियरिंग नाउ. जो 2 रुपए का डोसा था आज 290 रुपए में 2 लोगों का हो गया विद कॉफी. 1971 से लेके 21 तक. सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पे आना था ना, ये लीजिए सर. वी ऑल यूज्ड टू वॉच मूवीज. बेसिकली हमने हर हिट फिल्म देखा हुआ है. 2021 के बाद जब से लॉकडाउन आया है 2021, हमने कितने लोगों ने थिएटर में जाके मूवीज देखी है? पर वहां पे जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको इन्फ्लेशन को बीट करके आज भी अपना खर्चा चलाना है. वो खर्चा बोल नहीं रहा है कि आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास ग्राहक नहीं है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमारे से फ्री में लेके जाइए. ये नहीं हो रहा है. So you need to focus on a second source of income and you need to categorize your client for that purpose. कि सर ये बिजनेस है, इसके लिए अपने को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर अस. ऐसा नहीं है कि अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है और उनके लिए थोड़ा ज्यादा है. वो शायद वो रिस्क क्लास 1 कैटेगरी में है, हम रिस्क क्लास 2 कैटेगरी में, पर है रिस्क तो है और हमें रिस्क मैनेज करना है. रिस्क को अवॉइड करोगे तो कभी भी काम नहीं बनेगा. रिस्क को मैनेज करोगे तो आपको 100% रिटर्न दिखेगा. सो दिस इज द इन्फ्लेशन कॉस्ट. हमारा लाइफस्टाइल है. पहले हम चप्पल जूते खरीदते थे, लिबर्टी के खरीदते थे, आज स्केचर्स के खरीदते हैं. पहले हम नॉर्मल तेल यूज करते थे, आज ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, या कोई तो कंप्रेस्ड ऑयल पे शिफ्ट हो चुके हैं. इवन विद द वॉचेस वी हैव मूव फ्रॉम टाइटन टू G-Shock. वी हैव मूव. देन इवन विद द से सोप्स, पहले हम तो लिरिल या लाइफ बॉय यूज करते थे, आज हम हैंडमेड सोप्स पे जाते हैं. सो वी हैव इंक्रीज्ड आवर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस. सो जो लाइफस्टाइल एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है ना, वो ऐसे 20-30% पे नहीं हुआ है. 400%, 500%, कई जगह तो 1800% है. हाउसेस के लिए मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इफ आई गो विथ मुंबई, आपको अगर एक बेडरूम ज्यादा चाहिए तो 1 करोड़ रुपए तो आराम से निकाल दो इन द सबर्ब्स. साउथ मुंबई की बात अलग करूंगी. सो when you have a lifestyle affecting the things very much, you need to plan that also. अब एक अकेली जान कितनी जगह प्लानिंग करेगा और कितनी जगह पैसा मैनेज करेगा, even maintaining the lifestyle and the social obligations as on day-to-day activity. How to overcome this? Yes, we can give you a solution for that. To cover up inflation on a very smaller front and very digestible front, आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो 20 साल बाद वो 1 लाख की वैल्यू है 28,000 रुपये. अगर मेरा रिटायरमेंट 20 साल के बाद है तो मेरा 1 लाख रुपया मेरे लिए 28,000 की इक्विवेलेंट है. अब आपके पास आता है कि मैं कैसे 1 लाख को 2 लाख करूं ताकि मेरा एक्सपेंस बरकरार रहे. सो इट कैन बी डन इन अ वेरी गुड एंड डिसिप्लिन्ड वे. उसमें ना आपका ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ना ज्यादा पॉकेट पिंच होगा, बट you will have a very good compounding effect and a very good rupee costing way just by doing SIP. And it is a very beautiful way to create good money, beat market timing, have a proper rupee cost averaging, and having a 8th wonder of the world in your pocket with the bare minimum investment. Compounding help कैसे करता है? सर as it is a March going on, so आपके पास तो हर कोई क्लाइंट आता है टू सेव इनकम टैक्स. ठीक है, वी ऑलवेज सी कि जो चला आ रहा प्रोसेस है कि वी ऑलवेज इन्वेस्ट विद द प्रोडक्ट विद द 15 years लॉक इन एंड हैविंग अ इंटरेस्ट ऑफ अराउंड 7-8%. ठीक है, 15 years 7-8%, फेयर इनफ सर.
अब मैं आपको ना इसका रेप्लिकेशन बताती हूँ कि उसके सामने इफ देयर इज अ प्रोडक्ट अवेलेबल विथ 3 years लॉक इन एंड अज्यूमिंग अ रिटर्न ऑफ से 12 to 13%, हाउ कैन वी क्रिएट वेल्थ 15 years स्पैन ऑफ टाइम? कंपाउंडिंग कैसे हेल्प करेगा सर? 2% में भी कंपाउंडिंग मेजर डिफरेंस करता है. हियर वी कम. बच्चा है, बच्चे के लिए हमारे पास ये सारे लाइफस्टाइल्स और ये सारे एज बार्स है जहाँ पैसा लगता है. और ये जो इन्फ्लेशन बता रहे हैं ना सर, कोविड रीजन में ये थोड़ा ज्यादा स्पाइक हो चुका है बिकॉज वी आर ओवर हियर टू बाय गैजेट्स. हमारे पास कंटिन्यू वाईफाई चल रहा है. जो गैजेट्स बाय कर रहे हैं उसको मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि वायरसेस ज्यादा फ्लो हो रहे हैं. कभी गिर जाता है तो स्क्रीन खराब होती है. तो ये सारे एक्सपेंस तो अलग से आ चुके हैं विच आर नॉट काउंटेड इन दिस साइड. वी नीड टू काउंट ऑन इट. ठीक है. How compounding will work while counting this? Even a 2% change in the product will work. See, यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है for 25 years with the product interest giving 8% and the product interest giving 10%. So there is a difference only of 2% and the end result is 1.8 crores and 2.9 crores. तो सर जब 1 करोड़ 12 लाख रुपए का अगर डिफरेंस बनता है just by having a asset allocation to other product, सो ये 1 करोड़ रुपया डेफिनेटली 20 साल बाद कुछ मायने रखने वाला है फॉर यू एज वेल एज फॉर योर क्लाइंट्स. सो हाउ टू वर्क ऑन इट? साइमल्टेनियसली आपको ये देखना है कि आप रिजनेबल रखो. ऐसा नहीं है कि वो इसमें हवा भरते रहो क्योंकि मुझे और बड़ा चाहिए और अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आए. नहीं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है विच सेज कि मैं आपको इतना रुपया इतने दिनों में बना के दूंगा, शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने में, लॉन्ग कट ही है. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस. अगर आपको पैसा बनाना है आपको वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वरना अल्टीमेटली यू विल एंड अप इन बाइंग अ रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट जहां पे फिर आप पूरी जिंदगी बोलोगे कि मैंने उसमें पैसा लगाया था मेरा पैसा बना नहीं, जबकि वो प्रोडक्ट का अपना स्ट्रेटेजी अलग होगा. बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी, आफ्टर इन्वेस्टिंग यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस. But investing in a strategy also need to follow the process. अब प्रोसेस कैसे हम फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. हम क्या करते हैं कि कोई भी फंड लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हैं, उसका हम 3 रिस्क एनालाइज करते हैं. एक तो परफॉर्मेंस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और फंड मैनेजमेंट रिस्क. ये 3 रिस्क में अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट उतरता है तो ही हम उसको सेल करते हैं, वरना नहीं करते. तो ही खुद का पैसा इंसान लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा. परफॉर्मेंस रिस्क में देखा जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट है उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और जो अलोकेशंस डाले हैं प्रोडक्ट्स बनाने के वो क्या है, वो कितने अच्छे हैं और वो कितने अच्छे से रिस्क को मैनेज करते हैं. अगर वो स्ट्रेटेजी में एक भी बार ऐसे लगता है कि ये रिस्क को अवॉइड कर रहा है और मैनेज नहीं कर रहा है, वी डोंट पिक अप द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट बास्केट बिकॉज वी डोंट वांट टू अवॉइड एनीथिंग, वी वांट टू मैनेज इट. सेकेंड थिंग होता है लिक्विडिटी. we have seen that there was a problem with the industry, for example at the time of Franklin. So we faced a liquidity issue. So Franklin AMC बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है. डेफिनेटली उसके फंड्स समझ में नहीं आए. वो फंड बहुत अच्छे से कहता है कि आई एम अ अग्रेसिव फंड, इफ यू इन्वेस्ट विथ मी प्लीज बी ऑन द अग्रेसिव कैटेगरी इवन विद द डेट्स. तो सर अगर आप नहीं समझ पाए और आपने सिर्फ यील्ड को देखा और फंड को नहीं देखा तो गलती किसकी है? आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज सम गुफअप, देयर मे बी, बट अपना काम बनता है कि वो स्ट्रेटेजी को समझे, ऑब्जेक्टिव को समझे, तब वो प्रोडक्ट को डिसाइड करे. पर अगर आप नहीं समझ रहे हो और सिर्फ एक ही जगह रिटर्न पे फोकस करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा रुकेगा. आपका काम है कि आप वो स्ट्रेटेजी को समझे, ऑब्जेक्टिव को समझे. उसके लिए आपको आपका गोल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे गोल के लिए वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है. आपको अगर यूएस जाना है और आप कार लेके जाओगे तो आप जल्दी नहीं पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे. बट अगर आपको यूएस जाना है तो यू नीड एन एरोप्लेन, यू कांट गो विद अ कार. बट अगर मुझे पूना कॉर्पोरेशन से बालेवाड़ी जाना है तो मैं एरोप्लेन लेके कोई मतलब नहीं है, मुझे कार या बाइक या टेम्पो या टैक्सी या ट्रक चाहिए,
तभी मैं पहुंच पाऊंगी. सो अल्टीमेटली यू नीड टू डिसाइड अ व्हीकल, विच व्हीकल यू वांट टू गो. तभी आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे. गलत चीज लेके निकलोगे तो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे. देन यू कांट ब्लेम द प्रोडक्ट फॉर दैट. साइमल्टेनियसली एक फंड मैनेजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पैसा बनाने में. आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी चला रहा है या जो प्लेन उड़ा रहा है या जो ट्रेन चला रहा है, वो मोटरमैन कैसा है, वो पायलट कैसा है, या वो ड्राइवर कैसा है. अगर वो ड्राइवर, मोटरमैन और पायलट में खराबी है तो आपके पास चांसेस है कि यू एंड अप हैविंग अ रोड एक्सीडेंट और आपके गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके लिए आपको टाइम लगेगा. So we need a very good and ethical person driving our financial product. He may be a good advisor, he may be a fund manager. तो आपको दोनों चीजों पे आपके खुद के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस में ये चीज जरूरी है कि जो बंदा आपका पैसा मैनेज कर रहा है वो कितना अच्छा है. आपके लिए फिर पैसा बन जाएगा. आपको आपका रिस्क मैनेज करना है बाय सिलेक्टिंग अ राइट पर्सन फॉर यू, नॉट अ राइट प्रोडक्ट फॉर यू. वो बंदा आपके लिए राइट प्रोडक्ट डिसाइड करेगा और आपका पैसा बना के देगा. So what our work is selection of a right fund manager who has a ability to manage the performance risk and the liquidity risk so that you can have a money. Investment rocket science नहीं है सर. आज आप गूगल कर लो. We have learned to Google in the lockdown and उसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है. पैसा तभी बनेगा जब आप प्रोडक्ट बेचोगे. So even when you go to any shop or any company, you see they make money in the audit reports only by the sales of their products and services, not by just making the inventory. Same thing is applicable to us. Only investment से पैसा नहीं बनेगा. आपके पास right exit strategy भी होनी चाहिए और आपके पास right re-entry strategy भी होनी चाहिए. तब जाके आप पैसा बनाओगे. अभिमन्यु बन के पैसा नहीं बनेगा. उसके पास सिर्फ नॉलेज था अंदर जाने का, बाहर निकलने का नॉलेज नहीं था. आज हम लोग अभिमन्यु बने हुए हैं. हमारे पास पता है कि यार ये फलाने फंड में एसआईपी शुरू कर दे, ये फलाने स्टॉक में पैसा लगा दे, ये कर ले. टुडे इन द मार्च 20 में जिसने पैसा लगाया मार्च अप्रैल मई में, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है. आस्क देम व्हाट आर दे डूइंग विद देयर मनी. अब वो कंफ्यूज्ड है कि वो पैसा निकाले तो कहाँ लगाए. उतना ही पैसा वापस बनेगा या मुझे वो होल्ड करना है. बिकॉज वी आर अभिमन्यु, हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है. उस वक्त हमने एडवाइजर को मना कर दी थी कि हम कर लेंगे. आज आपको चाहिए. इवन एडवाइजर के लिए आज वो उतना ही पेनफुल है क्योंकि उनको पता नहीं मार्केट क्या करेगा. whether it will go up, whether it will go down, whether they have to continue with the investment, whether they don't have to continue with the investment. हर किसी के लिए इशू है. बट as they are being into the field, they are still more aware कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. What fund manager will do beside performance risk and liquidity risk? वो समझता है कि जो भी एसेट एलोकेट करता है या जो भी स्टॉक सिलेक्ट करता है उसके लिए एक प्रोसेस होता है. वो बंदा वो प्रोसेस फॉलो करता है. इफ यू बाय एनी स्टॉक, आई वुड जेन्युइनली आस्क यू, आप उसके बारे में ऑन एन एवरेज 2 घंटा विदाउट रिपीटिंग एनी सिंगल स्टेटमेंट बोल सकते हो क्या वो स्टॉक्स के बारे में, वो कंपनी के बारे में? अगर हाँ है देन इन्वेस्ट. अगर ना है, you seek a professional advice because the question is about your hard-earned money, yours and your clients. This particular fellow, the fund manager, has an ability to talk on one particular stock for entire 2 hours and give you a proper call कि हाँ ये अगर मैं ये फलाने फंड में पैसा लगा रहा हूँ, इतने समय के लिए लगाऊंगा, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे पता है कि इतने समय में इसमें इतना पैसा बनेगा और मैं निकल जाऊंगा. This fellow has an ability to exit. उसने वो ठान रखी है और उसके पास उसका लॉजिकल रीजनिंग है कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ. हमारे पास अगर वो है, हाँ, अगर नहीं है, यू सीक अ प्रोफेशनल. पहले सर हमारे को we used to have cold cough and we always used to have some sort of paracetamol or something and we used to cure ourselves. But post March, whenever we have cold or fever, we first go and seek the professionals कि what is happening to me, right? पहले कोल्ड फीवर में हम घर का इलाज करते थे, आज हम प्रोफेशनल हेल्प करते हैं.
So such change is the only constant thing, and same thing is applicable for money. Even while investing, you should focus on asset allocation. The thumb rule to make money is a proper asset allocation. अब ये सारे मार्केट्स हैं, हर जगह पे जहां जहां लोग पैनिक हुए पैसा निकाला और इन्वेस्ट नहीं किया. विद द ग्रेस ऑफ गॉड दिस टाइम इन अप्रैल इंडिया में ऐसा हुआ कि पहली बार लोगों ने पैसा डाला. इट वॉज अ वेरी बिग चेंज फॉर अस ऑल्सो. एज एन एडवाइजर मेरे लिए भी बहुत बड़ा चेंज था कि लोगों ने सामने से फोन करके बोला है कि वी वांट टू इन्वेस्ट. ठीक है, कुछ लोगों ने अपने आप डाला, कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया. जिन्होंने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किया वहां पे वी टुक अ कॉल, जहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना था हमने किया, सब कुछ किया. जहाँ पे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, आज वो लोगों के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या करना है. द अदर आई हैव कम अक्रॉस विद मेनी पीपल who have pulled off their all investments at the time of Diwali, assuming कि इतना पैसा मार्केट गिरने वाला है. तब से लेके अब तक मार्केट बहुत ऊपर हो चुका है. And these players are still awaiting to market to drop and invest. Sir, market over here is to prove us wrong at every given point of time. And he will always say कि you are wrong, and to make money, you can't time the market. You have to average the market. He said this is a thorough study about some large cap, mid caps and multi caps. Check out, sir. Whenever it was 39% down, 39% up, 5% down, 56% up. Even in the year 2008 when there was a IT cycle crash, ये 59 down था और 99 up है. And same thing, this is a mid cap, and same thing is applicable for large cap. So whenever market down होता है वो V shape में up होता है, U shape में नहीं होता है. So study ने भी बताया है कि V shape up हुआ है, बट जब वो V shape up हुआ है वो सही टाइम है. आपने जो पैसा कमाया है उसके ऊपर कॉल लेके उसको एक मल्टीप्लिकेशन मोड में डाले, उसको स्टैग्नेंट मोड में नहीं डाले. अनफॉर्चुनेटली 25% ऑफ द वेल्थ पर्सन जिन्होंने पैसा अपने लेवल पे लगाया था, आज उनका पैसा स्टैग्नेंट मोड पे आ चुका है क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को कंटिन्यू नहीं किया. सो again I'm coming to the part, before investing do research and evaluate all the products, और आफ्टर इन्वेस्टिंग उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करो, उसके ऊपर डाउट मत करो. क्योंकि फाइनेंस ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर रोज एक नया प्रोडक्ट आने वाला है. आपके पास हर रोज नया प्रोडक्ट आएगा. आप हर रोज नए प्रोडक्ट के साथ आपके प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते. आप उसके एनालिसिस और परफॉर्मेंस दे सकते हैं. एंड इफ यू हैव मोर, बाय द न्यू वर्जन, बट डोंट कंपेयर ऑरेंज और एप्पल. बिकॉज अगर मैं बोलूं कि नाउ गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 75% बाहर का पैसा आ सकता है, दैट मीन्स यू एक्सेप्ट अ वेरी बिग रिवोल्यूशन कमिंग विद द इंश्योरेंस सेक्टर. इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा है वो गलत है. इसका मतलब अब ये हो चुका है कि इंश्योरेंस भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रिव्यू करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैंने आज पॉलिसी ले ली और वो 25 साल चलती रहेगी, बिल्कुल नहीं. ऐसा है आज मैंने पॉलिसी ले ली है, आफ्टर 5 years try to review and add something which you don't have, maybe with mediclaims, maybe with personal accidents, maybe with benefit policies, maybe with your insurance policies, life insurance. आपको अब वो सेक्टर में भी इवैल्यूएशन आ चुका है. So you might be आपको पता हो या नहीं हो, there is a company जो पर्सनल एक्सीडेंट में डेंटल कवर देती है. If you are not aware, then it is time to evaluate your insurance segment now. क्योंकि हमने वो ऐड किया ही नहीं है, वो एक ही कंपनी के पास है और कोई कंपनी के पास है नहीं. ठीक है. नाउ अब कितना रेगुलरली करना है, चलो आपको समझ में आया कि हाँ मुझे इवैल्यूएट करना है और कितना फास्ट करोगे. सर, if you are on a mode to review your portfolio, review it 365 डेज में से 1 घंटा उसको टाइम दीजिए. उतना टाइम तो आपका पैसा मांगेगा जिसके लिए आपको 365 दिन आप खर्चा करते हो. सो इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव 1 hour to your heart and money, then no one can make wealth for you.
But if you are in a position to give 1 hour for your hard earned money, then you and your advisor both are on the same page to work. And this we do for our clients and for the persons who are associated with us, for their clients as well. हमारे पास क्लाइंट तभी है जब हमने उसके पास एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन दिया है जिसके लिए उसको कहीं पे भी लोन लेने की जरूरत नहीं है. He is our long-term client and we focus on that part. मेरा कोई भी क्लाइंट पिछले 14 साल में मुझे छोड़ के नहीं गया है. So they know कि we work for them and the products जो भी हम देते हैं एक holistic approach से देते हैं. अगर उसको एक particular product की जरूरत है नहीं तो नहीं है. We can't say them कि आपको ये compulsory चाहिए आपके product basket में क्योंकि मुझे बेचना है, जरूरी नहीं है. क्योंकि we are working for our passion. And once you start working for your passion, you genuinely start giving a very good advice for your clients. So they are retained with you. They always get some value added services and they are your long-term associates. Sir, एक small है. This is a life. आप सबके clients के पास home loan है. अगर 1 करोड़ का कोई होम लोन ले रहा है एट 6.8%, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो चुके फॉर 20 इयर्स, उसका EMI जाता है 76,334 रुपीज. सो फॉर एंटायर 20 इयर्स 1 करोड़ के सामने वो 1,83,20,000 रुपीज का रीपे करते हैं. सर अगर मुझे ये 83 लाख का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मेरे क्लाइंट को अगर मुझे वापस कर देना है अगले 20 साल में और 1 करोड़ के सामने 1 करोड़ का रीपे ही देना है, तो वो सामने वाले को सिर्फ 7,900 की SIP शुरू करनी है. In 20 years, he will get his entire money back, the interest paid, just by adding 10% more. इतना तो हमारा क्लाइंट दे सकता है. This is something we are actually value adding to him. पर ऐसे अगर आप चाहो तो मैं वो क्लाइंट्स के होम लोन प्रीपे करवा सकते हैं. हम वो क्लाइंट का प्रॉपर रिटायरमेंट 30-30 चैलेंज में उनको एंट्री करवा के एक प्रॉपर रिटायर्ड लाइफ दे सकते हैं. वी कैन गिव देम अ वेरी गुड वे टू हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम. वी कैन गिव देम अ वेरी गुड वे टू मेंटेन देयर हायर लाइफ स्टाइल्स ऑल्सो. सो वी कैन डू दैट फॉर देम with the help of a holistic and wealth management process approach. ऐसा नहीं है कि haywire suggestion आ जाएगा. Yeah, professional advice is definitely required. वरना you end up lying out in a bed. जिम भी जाते हो तो ट्रेनर रखते हो. बुक पढ़ के कभी काम नहीं होगा. अगर एक आधा मसल पुल हो गया तो you have to go with the doctor again. So you have to pay there or pay here. It is up to a client choice. Sir, 30-30 चैलेंज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी और मेडिसिन इतना अच्छा हो चुका है कि दे ऑलवेज ट्राई टू सेव अस. एंड इफ यू ट्राई टू सेव अस यू नीड मनी. दिस इज नॉट मी बट दिस इज अ ग्राफ टॉकिंग कि हमारा लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड. मुझे इसमें से किसी को कोई भी डेट पता है? उसको पता था उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है? किसी को पता है डेट ऑफ डेथ क्या होने वाला है? एक्सीडेंट का डेट क्या होने वाला है? डिसेबिलिटी का डेट क्या होने वाला है? हॉस्पिटलाइजेशन का, कभी कोई किसी को क्रिटिकल इलनेस आ जाएगा, किसी के फायर लग जाएगा, अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी होगा. इसमें से अगर किसी का भी डेट किसको पता है तो प्लीज रेज योर हैंड. नहीं? एक बात और बताइए, अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम जाके क्या बात करते हैं? हाउ आर यू? और फिर थोड़ी देर बाद, अरे भाई आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है? डू वी? सब हाथ रेज करोगे ना? दिस टाइम आई वुड डेफिनेटली लव टू हैव द हैंड रेज. डू वी रियली आस्क आवर क्लाइंट, द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जिसके भी पास जाते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है? पूछते हैं हम जब वो एडमिट होता है. हाँ पूछते हैं सर, भले ही आप रेज हैंड नहीं करो. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हाट वी आस्क. एंड इफ वी आस्क दिस क्वेश्चंस, डू वी आस्क कितने का है? और अगर वो सामने वाला बोलता है कि नहीं है और
3-4 दिनों बाद अगर उनका फोन आता है and if we ask for some financial help, do we really have an point to give them a financial help? हम देते हैं या हम रुकते हैं? ये आप खुद को क्वेश्चन कीजिए. I have heard few people have stopped picking up the client phone of the friends and relatives, those who have admitted in the hospital, because they don't have insurance policy and they have asked for the financial help. Sir, insurance policy होना important नहीं है. Important है adequate insurance होना. हम खाना खाते हैं तो पूरा पेट भर के खाते हैं. We don't eat half food. We always love to have the entire thali with us and we eat it, right? And we try to fulfill our stomach. But if you don't have an adequate insurance policy, ultimately you have to pump in money from your pocket, or you have to pull money from your investments, from your savings. You need to buy your assets, buy your gold, or you need to borrow money if you don't have the things. With the insurance मतलब क्या है कि मैंने मेरी liability insurance company के ऊपर डाली and they are happily ready to get it. सर वो आपका दोस्त है इंश्योरेंस जो आपसे पैसा ले रहा है, बट जब जरूरत होगी ना वही दोस्त आपके काम आएगा और कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि बाकी दोस्त ने भी अगर आपको पैसा दिया है तो आपको उसको पूरा पैसा वापस देना है. ये ऐसा दोस्त है जो आपको पैसा देगा और आपसे पैसा वापस नहीं लेगा, और जो आपको पैसा दे रहा है उसके बदले में जो आप उसको फीस दे रहे हो वो एक पीनट है, वो बहुत ज्यादा है नहीं. दिस इज द कॉस्ट सर. एज ऑफ टुडे इसमें एक चीज ऐड नहीं हुई है. इफ यू आस्क मी कि किसी को अगर सर्जरी करना है, they will ask you want a COVID zone or non-COVID zone. If you say कि I don't want a COVID zone, I want a non-COVID zone, there is an extra cost for us, which is not added over here. Plus, now once you enter a non-COVID zone, वहां पे आपको बेड मिलना मुश्किल है, वो बेड का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है. एट ये पॉइंट पे हम वो देखते नहीं है क्योंकि हमारा जो लव्ड वन है उसको जरूरत है एंड वी पे. सो अल्टीमेटली अगर एडिक्वेट कवर है नहीं और राइट इंश्योरेंस है नहीं तो आप आपके फाइनेंशियल प्लान्स को पीछे छोड़ देते हो. Once you avoid your financial plans and mismanage them, you pull back your family finances 7 years. आप 7 साल पीछे चले जाते हो. आपको पहले तो वो 7 साल रिकवर करना है और फिर आगे जाना है. So you again start from zero. Sir, wealth protection is a very much integral part of wealth creation. अगर आपके पास प्रॉपर बॉडीगार्ड नहीं है, जैकेट्स नहीं है, बुलेट प्रूफ, तो आप काम नहीं कर सकते, आपको गोली खानी पड़ेगी. टुडे वी से हमारे इंडियन आर्मी के पास ड्रोन्स है, हमारे इंडियन आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हमारे इंडियन आर्मी के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है. क्यों? दीज आर देयर प्रोटेक्शन. Why don't we need our protection for our wealth? Last but not least, transition भी बहुत important है. That's the reason we say आपकी विरासत हमारी अमानत. अगर आपके ट्रांजिशन में प्रॉब्लम है, so there is a problem with your next generation. Now it is up to us कि हम वो ट्रांजिशन वाला फेज कैसे कवर करें. We do all the estate planning models. We do plan for yourself. हम ट्रस्ट बना देते हैं, हम प्रोबेट बनाते हैं, एडवांस्ड हेल्थ के डायरेक्टिव्स बताते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, एक ट्रस्ट में भी एक प्रॉपर सक्सेशन प्लान्स बना देते हैं. सो वी डू ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे आपके फैमिली के हायर्स को कभी भी इशू ना हो. मे बी विद टैक्सेशन, मे बी विद ट्रांजिशन. हम दोनों वे में उनको एक प्रॉपर बेनिफिशियरी नॉर्म्स के साथ आगे देते हैं. So not only for them, but for their kids, they have a proper constitution be in the led in a very proper way. So we help them in making the family constitution as well. So it is your personal choice on how high to go and with how much convenience you need to go. That is your personal choice, not only for you, but for your clients also, कि आप उनको किस हिसाब से एक वैल्यू एडेड पार्ट दें ताकि वो आपके साथ हमेशा इंटैक्ट रहे. So what would be the solution for this?
Are you well equipped for all these answers, or you need more? If any questions, do please come up. What I did over here for you people right away, I have saved your 1 hour. मुझे 2 घंटे का टाइम दिया गया था, मैंने आपका 1 घंटा बचाया है, so that I can address all the things what is coming up in your mind. I have all the technical answers as well as all the emotional answers. So if you people are on that part, on the same page, do ask me whatever you have in your mind. I have kept this 1 hour for that question and answer. Ma'am, there are 2 questions in the Q&A box, I think. Yeah, I'm just going through it. Yes. One question is from Nikita Joshi. If my monthly expenses say 50K, then how much should I save now for retirement and how? Nikita ma'am, this is a very rough way you have actually given me a question. इसमें बहुत ज़्यादा elaboration चाहिए. Number 1 is that कि इसमें आपका age चाहिए. Number 2, we need to understand your income. Number 3, we need to understand your lifestyle. On the 3 things, we can actually come up what exactly we can provide you. So I would be sharing my contact number. You can definitely get in touch with me so that I can understand the things in deep and give you a proper right draft for that. Yashika ma'am has given, looking at the fund, how can we understand that whether it is managing risk or avoiding risk? Looking at the fund is barely not possible. You can understand whether it is managing risk or avoiding risk. You need to understand the fund manager associated with that fund. So if it is possible for you, then you interact with the fund manager. And if it is not, then interact with your advisor, who always interact with the fund manager. What we do on our side, we always try to call the fund managers on the monthly basis for our clients, so that we arrange a forum for them via Zoom or via Google Meet, and we give our client access of the fund manager. So my client also understand what the fund manager do, and what my advisor is talking is also on what part, because fund manager can't deviate from the objectives. So we do that. We always, in a month, we call a fund manager and we make him interact with our clients. More than there is anonymous attendee who want to know more about 30-30 challenge. Sir, 30-30 challenge, it's very simple. We start earning at the age of 25 and we try to get retire 25 to 30 के बीच में हम earning शुरू करते हैं, and by 60-65, अभी 65 कुछ लोग कर रहे हैं, 60 is the age, कुछ लोग 65 है, कुछ लोग 55 है. So I will consider a retirement age between 55 to 65. उस वक्त लोगों को रिटायर होना है, आगे काम नहीं करना है, because they want to explore. आजकल रिटायरमेंट बहुत अलग हो गया है. हमारे पेरेंट्स का रिटायरमेंट क्या था? They are sitting at home, they are taking care of our kids. हमारा रिटायरमेंट बहुत अलग होगा. We would be exploring the world because we have not explored it. We have earned. हमने हमारा कमाई में बहुत टाइम डाल दिया, तो हमको एक्सप्लोर करना है. हमारा रिटायरमेंट होगा, we would be exploring, we would be learning, we would be having certain social clubs जहाँ पे हम जाएंगे, रहेंगे, करेंगे. So we would be doing that which our parents have not done. And simultaneously we will be having more expense on the medical ground, क्योंकि हमारी वो है नहीं. टुडे ऑल्सो 45-50 वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, सो वहां पे उनका रहेगा. सो ओवर ईयर व्हाट वुड बी द थिंग कि 30-30 में जो नेक्स्ट 30 इयर्स है, योर रिटायरमेंट नीड्स टू बी प्लान, ताकि आप कमाओ या नहीं कमाओ, यू मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल. सो आज का अगर आपका 1 लाख का खर्चा है, 30 साल के बाद ये 1 लाख का खर्चा आपका होगा करीबन 2.5 से 3 लाख रुपया महीना. सो now this would be per month 36 lakhs. You have to take care for 30 years. Life expectancy बढ़ चुकी है, उसमें आपको inflation जोड़ना है. So this all comes with the 30-30 challenge, where we will come down and help you out how to cover your medical expenses, how to cover your lifestyle expenses, how to cover your daily expenses, as well as if you want to go on the learning mode or having something with your exploring mode, उसको भी कैसे maintain करें. ना हम तब सुन नहीं सकते, तो तब ना नहीं सुनना है, तो आज वो ना को हाँ बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा.
एंड सर अगर आपको और 30-30 चैलेंज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए ब्रीफ में, प्लीज गेट इन टच विद मी. आई कैन डेफिनेटली इलॉबरेट मोर द टॉपिक्स टू यू. Then we have, do we expect a gold price to go down further? सर अगर मुझे वो पता रहता तो I would be the person next to Warren Buffett. So even Warren Buffett doesn't know, neither the fund managers know कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी तो मार्केट हमें गलत प्रूफ करेगा. सर यू ऑल हैव किड्स एट योर होम, तो अगर हम बच्चों को कहीं गेस्ट के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं नहीं यार ये ना एप्पल खाता ही नहीं है, और वहां पे ना वो पक्का 2 एप्पल खाएगा. सो इवन किड्स प्रूव अस रॉन्ग. सो मार्केट से मैं क्या उम्मीद करूं? सो वेरी सॉरी, आई कांट आंसर ऑन दिस. हाँ, बट डेफिनेटली इफ यू हैव मनी उसको एवरेजिंग कर लीजिए. Don't wait to when it should be fall. And gold is a very good product for hedging, not making money. Invest in equity or mutual fund is better. How you advise on, Dhananjay sir पूछ रहे, how you advise on taking different risk into consideration and of course return to? Sir, यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेगा योर एसेट एलोकेशन. अब तक आपने पैसा कहाँ पे पार्क किया है? अगर आपके एसेट एलोकेशन में आपने इक्विटी फुल कर दिया है या म्यूचुअल फंड फुल कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगेगा दैट यू शुड ऑप्ट फॉर न्यू एसेट्स. बट अगर आपके एसेट्स में अगर आपने अब तक सिर्फ एफडी, आरडी और पीएफ में पैसा डाला है इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, देन आई वुड से कि आप इसके ऊपर फोकस करिए. सो इट इज एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन राइट नाउ व्हाट एसेट एलोकेशन यू होल्ड. अभी रिस्क कंसिडरेशन तभी आएगा जब आपका गोल समझेगा कि आपको किस चीज के लिए पैसा डालना है. अगर आप बोलोगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है क्योंकि मुझे 2 साल बाद घूमने जाना है, then definitely the investment class would be very different. Whereas if you come down and say कि नहीं आते मुझे 6-7 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए, then definitely the investment class would be very different. So definitely taking asking for the risk question will depend upon the type of tenure you want to look out for the investment and the goal associated with it. I have one question coming up. Even if we start an SIP today, today for say 25 years in the equity MF approx, we will receive INR 1.5 to 2 crores at the end of 25 years. But if we consider time value of money, even I think even 1.25 crores or 2 crores will not be sufficient at that time. So how to overcome on the issue? Very good question, sir. That's the reason we always say 365 दिन में से 1 घंटा निकालिए. यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं आज अगर 100 रुपया कमा रहा हूँ तो 365 दिन बाद मैं 110 रुपया कमा रहा हूँ. बट 100 रुपीज के सामने मेरा खर्चा 30 रुपीज है. 365 दिन के बाद वो 40 रुपीज नहीं होने वाला है, वो 31 रुपीज होएगा. सो यू हैव स्टिल 9 रुपीज विद यू लेफ्ट. So that's the reason you need to review your portfolio every now and then. So at the end, when you receive the entire chunk, it is not small, it is good. And it can fulfill all your dreams, beating inflation and managing your real returns. So you need to review your portfolio. Any specific again anonymous, any specific advice to do it yourself investor? Example, my portfolio consists 20 SIP of 500,000 or 2,000. सर बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बिकॉज सेबी ने ना सबके लिए अपने मैदान कर दिए हैं. स्मॉल कैप हैज इज ओन ग्राउंड, लार्ज कैप हैज इज ओन ग्राउंड, मिड कैप हैज इज ओन ग्राउंड. अब आप मुझे बताइए, अगर आपने 3 मिड कैप फंड लिए हैं और 4 लार्ज कैप फंड लिए हैं, अल्टीमेटली तो स्टॉक्स तो वही रहने हैं, अलग होने ही नहीं है. तो आपने 4 अलग म्यूचुअल फंड लेके क्या काम किया? आपने उल्टा आपके रिटर्न्स को एवरेज किया है, रिस्क को एवरेज नहीं किया है. रिस्क तो उतना ही है, बट एक फंड ने 12% रिटर्न दिया, एक ने 14% दिया, एक ने 10% दिया, एक ने 11% दिया. सो यू हैव एवरेज्ड आउट विथ योर रिटर्न्स, यू हैव नॉट एट ऑल एवरेज्ड आउट विथ योर रिस्क. Go and sit with your professional advisor or share the portfolio to me. I will give you a proper allocation what exactly is required. और आपके उसके अंदर आपको पूरा मार्केट कवर करना है. 20,000 is a very good amount.
फोकस ऑन एसेट एलोकेशन, पैसा बन जाएगा. So any more questions? I have one question for you people. What is the most precious thing in the universe? Okay. I got the answer from Yashika, Smita, Anonymous. It's time. How do you manage your time with your loved ones? Is there any set process for your money कि अगर आप loved one के साथ 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन घूमने गए तो आपका काम फिर भी चलेगा और आपको पैसा मिलेगा? Have you ever thought on that? We are here to make you work on that part कि जहाँ पे आप आपके लोगों को टाइम दो, वो टाइम के सामने आपको पैसा मिले. For us, we believe a financial independent life is very important for a person to stay happily with the family. There is a question from Mr. Dhananjay. In a US bond yield rate, how the rate will move in coming 6 to 12 months, how it is going to impact our share market? Definitely sir, आज भी हम थोड़ा बहुत तो पूरा भी यूएस पे डिपेंडेंट इंटरनेशनल इकोनॉमी है. हाँ, बट एक बात पक्का है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग. कहीं ना कहीं इंटरनेशनल करेंसी में भी चेंज आने वाला है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स. बट डेफिनेटली बॉन्ड यील्ड रेट अगर गड़बड़ खाता है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. There is a question from Mr. Pankaj Modani. Is there any standard ratio of various asset class that should be maintained? Yeah, this is a very good question. And yes, there is a standard thumb rule. Thumb rule ऐसा है कि अगर आप 100 rupees कमाते हो तो 30 rupees is a part you can spare only with the EMIs. उससे ज़्यादा अगर आपका EMI portion जाता है, you are ending up with the rat race. फिर रिमेनिंग 60% में 30% हो जाते हैं आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड नियर फ्यूचर एक्सपेंसेस. इन रिमेनिंग 40 rupees, 20 rupees is the part you should protect out for your investments. The 20 rupees what is left out is for your lifestyle expenses, where you need to manage your lifestyle as well as work on the strategy to create a second source of income. पहले ऐसा नहीं था, पोस्ट कोविड ये थंब रूल हो चुका है. Anonymous, do you provide yearly financial plan to clients to understand current financial position and how much away from the goal? Yes, we do. In the review plan, we definitely have a call कि सर हमने फॉर एग्जाम्पल 20,000 की SIP शुरू की थी, कीपिंग इन टू माइंड योर रिटायरमेंट प्लान. अज्यूमिंग आज आपका ₹1,00,000 का खर्चा है, 3 साल बाद अगर मैं वो क्लाइंट के साथ रिव्यू करती हूँ, ₹1,00,000 का खर्चा हो जाता है. ईयरली चलो बात कर लेते हैं. 1 year डाउन द लाइन उनका ₹1,00,000 का खर्चा ₹1,10,000 हो जाता है. तो देयर इज अ हाइक इन 10,000 rupees विद देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. सो डेफिनेटली वहां पे उनके कैलकुलेशंस में उनका SIP चेंज हो जाता है या उनका जो भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है उसमें वेरिएशंस हो जाता है. कब होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ अगर ये रिव्यू मैंने किया होता था मार्च 2020 के पहले, ठीक है, तो उनका SIP अमाउंट बढ़ जाता. ये रिव्यू अगर मैंने अब किया है तो मैंने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूंगी कि सर अभी अपने को रिटायरमेंट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर आपके पास इतना सरप्लस है, हम इसको शुरू करते हैं. सो लेटर ऑन वी कैन पार्क इट फॉर दैट फंड. सो एवरी ईयर व्हेन यू गेट अ रिव्यू विथ योर क्लाइंट, दैट विल डेफिनेटली कम अक्रॉस कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है. और अगर मेरा परफॉर्मेंस ओवर रेटेड है,
जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कमा चुकी हूँ, तो मेरे को जरूरी नहीं है कि उतना पैसा इक्विटी में पार्क करना है. So at that particular point we pull out the money also and we park it in the debt, कि जब भी मार्केट डाउन हो जाए हम वहां से पैसा वापस डालें. तो रिव्यू मैकेनिज्म में ये सब आता है. तो रिव्यू मैकेनिज्म विल ऑलवेज मेक यू अंडरस्टैंड how to manage risk, how to make your money workable to create wealth. This what we do. We have a question from Mr. Anand. If my expense today is 1 lakh rupee, would 1 lakh rupees SIP suffice for my future if SIP is continued for 15 years? सर, आज आपका ₹1,00,000 का खर्चा है. इसमें आपका फैमिली साइज कितना है, आपके आगे के ऑब्लिगेशंस कितने हैं, अगेन आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब चीजें मुझे एक्चुअली देखनी पड़ेगी टू मेक द थिंग्स वर्केबल. इसमें सिर्फ रिटायरमेंट प्लान करना है 30-30 चैलेंज वाला, वो करना है तो वो अलग चीज है. पर अगर आप बोलोगे कि उसके साथ मुझे और 4-5 चीजें चाहिए तो अलग है. फेयरली टू बी ऑन ऑनेस्ट नोट आनंद सर, हम अगर इसके ऊपर बात करेंगे ना तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा और पर्सनलाइज में बता सकती हूँ. There is again a question from anonymous. Hello ma'am, say one client earning rupees 2 lakhs per annum from a fixed source and 50,000 from other source. Now he is planning to buy a land and develop it, and whatever building constructed he need to give it on rent and earn fixed monthly rental income. For investing the land he is having funds for construction rupees 60 lakhs loan will be taken and EMI will be paid. Probably as his plan he will be clearing and repaying the loan in coming 6 years. सर बहुत ब्रीफ है, ये ब्रीफ नोट पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे जो अगर मुझे आपको बताना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्लाइंट इज अर्निंग 2 lakhs, ये 2 लाख रुपए तो पूरा उसका अर्निंग नहीं है, उसका खर्चा भी है. अगर खर्चा नहीं है और 2.5 लाख रुपए उसका पर मंथ इनकम है, and if you want to buy a loan and take a 60 lakhs of loan, at what rate of interest? Number 1. Number 2, tenure of the loan. Number 3, the EMI जो वो पे करने की बात कर रहे हैं, मे बी फ्रॉम द रेंट व्हाट ही हैज बीन रिसीविंग, जो मेरा थॉट प्रोसेस जा रहा है, पर पहले 1 साल तक तो उनको वो चलने वाला है. अब सर इसमें मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस है, हर्डल्स है, उसके आंसर्स अगर मिल जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ. नंबर 1, वापस अगर कोविड स्पाइक हो गया और लॉकडाउन आ गया और उन्होंने लोन ले लिया तो क्या? नंबर 2, अगर कोविड स्पाइक भी नहीं हुआ, लॉकडाउन भी नहीं हुआ, पर लोगों के पास इतना है नहीं कि वो जाके रेंट पे ले, क्योंकि नाउ वर्क फ्रॉम होम इज वेरी मच अप टू मार्क. इफ यू आस्क मी, आई एम द बेस्ट एग्जांपल फॉर द वर्क फ्रॉम होम. नाउ वी हैव टेकन द ऑफिस. तो आज अगर मुझे वो स्ट्रेटेजी पे और वो एनालिसिस पे जाना है तो यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन द सेक्टर व्हाट यू आर प्लानिंग. अगर वो सेक्टर में दम है जहाँ पे आपको रेंट पे देना है और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मेरे सारे अगर कोविड आए नहीं आए फलाना हो जो भी हो, आई एम एक्चुअली ऑन द ग्रीनर पार्ट, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड. अदरवाइज यू हैव टू फर्स्ट मैनेज द रिस्क. यहाँ पे अवॉइड नहीं हो सकता. आप जो ओवरऑल सिनेरियो दिख रहा है कि सब ग्रीनर साइड है, उसमें एक भी लूपहोल नहीं है, बट अगर लूपहोल आते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रोविजन क्या है ये देखना ज्यादा जरूरी है. Again sir, anonymous sir, we can have a word on this. He needs a proper planning, not this way work will work for him. How important is luck in wealth management, Mr. Patel? सर एटीट्यूड के साथ लक भी आता है डेफिनेटली. मेरे 2 क्लाइंट है जिन्होंने मार्च में पैसा डाला है और 2 क्लाइंट है जिन्होंने अप्रैल में पैसा डाला है, क्योंकि उनके पास पेमेंट बाद में आया था, तो मार्केट टाइम नहीं कर सकते सर. हमने सिर्फ क्या किया था कि एवरेजिंग किया था, किसी का भी पैसा इकट्ठा नहीं डाला था. तो मेरा काम रहेगा मैनेज करना, बाकी तो लक रहता ही है डेफिनेटली. यशिका मैम का कहना है, what is the best material or course to understand about wealth creation and management? Ma'am, there are various books on it. You can actually go through it. For me, if you say कि best book क्या है,
तो आप महाभारत पढ़ लो या रामायण पढ़ लो, दी बेस्ट बुक ऑन वेल्थ मैनेजमेंट। आपको मैं समझाती हूँ। आप दुर्योधन ले लो, दुर्योधन के पास ग्रीड, फियर, होप है, ठीक है। उसके पास ग्रीड है कि उसको वो सिंहासन पे बैठना है, उसको होप है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कौरव से 100 पुत्र है, पूरी सेना है और मैं पांडव को हार के बैठ जाऊंगा। उसके पास डर है कि नहीं हारा तो, पर वो डर को ओवरकम नहीं कर पाया। उसके पास शकुनी है, शकुनी जो एक बैड एडवाइस देता है, ठीक है। उसके पास धृतराष्ट्र है जो इन्फ्लेशन है, पांडव है जो हैड अ बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी विद वर्सटाइल एसेट एलोकेशन। So these are the very best books where you can actually read and earn yourself. अगर आपको ये बुक्स में नहीं आता है तो you can go with Rich Dad Poor Dad. But ये जो सारे ऑथर्स है ना मैम, इनका जो बेसिक कैलकुलेशंस और वर्किंग स्टाइल होता है, इट इज ऑन यूएस वेल्थ क्रिएशन मॉडल। वी आर इन इंडिया, इंडिया में थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है। So I would urge ki read books and understand. You will actually things. But I have learned wealth management via Ramayana and Mahabharata. I have couple of my friends who have learned wealth management via Chanakya. So it is if that is your core thing, you go ahead and talk to that. These are the novels will actually work you out. Thank you, Yashika ji. In spite giving all the question answers, I have still saved your 32 minutes. Anonymous, sir. One of my client is earning 2 lakh rupees per month. He is investing 50% amount in secured funds like PPF, LIC, Post Office, MD. Out of balance 50, he is reserving 15% for the household expense, 10% for the medical reason, and the balance amount he is investing in real estate against the EMI. So is good cause he doesn't want to go in any mutual fund or SIP. Sir, if you have a barrier with that particular product, I can't help you out. But the only thing I can say is change is the only constant thing. PPF, LIC, post office, all are very good, but they were very good 10 years, 12 years back, जहाँ पे उनको डबल डिजिट रिटर्न मिलता था। आज नहीं है। आज तो ऐसा है कि पीपीएफ में 2.5 लाख से ऊपर पैसा डालोगे तो टैक्सेबल है, प्लस 15 साल का लॉक इन है, पोस्ट ऑफिस में 5 साल का लॉक इन है। तो सर आप, अगर मैं लॉक इन कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, टेस्ट करने में तो हर्ज नहीं है। इफ यू गो इन द रेस्टोरेंट, यू ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट सम अदर फूड ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं रोज इडली सांभर ही खाता हूँ या मैं सिर्फ पनीर की सब्जी और रोटी खाऊंगा। यू ट्राई टू टेस्ट समथिंग। एंड ऐसा नहीं है कि उनके पास वो टेस्ट करने का, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो तो दिख रही है। don't suggest him the equity products with first of all, let me clear one thing. Mutual fund product nahi hai. Please make a note of it. Mutual fund is a vehicle to take you along to the different products for the investments. You may invest in gold, real estate, bonds, equities, money market. सब जगह आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा डाल सकते हो। तो म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, प्रोडक्ट नहीं है। वो व्हीकल आपको वो प्रोडक्ट के पास लेके जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। सो मेक हिम इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स। लास्ट ईयर बॉन्ड्स हैव गिवन 12% रिटर्न एंड सिक्योर्ड है। सो this is only done if you are aware about the products. If not, please advise them कि go to a professional and where they can actually work at. Second thing, इनका जो पूरा आप एसेट एलोकेशन देखोगे, वो पूरा एसेट एलोकेशन ऐसे बास्केट में है जो 8 to 9% का रिटर्न देता है, वो भी लॉक इन के साथ। तो सर उन्होंने पैसा बनाया नहीं बनाया, यू अंडरस्टैंड विद द रियल रिटर्न कॉन्सेप्ट। ही नीड्स टू विजिट समवन वेयर ही कैन एक्चुअली गेट अ जेस्ट। और अगर इनका फैमिली साइज बड़ा है तो he can definitely pass a good legacy for the second generation as well. Sir, we need to talk on this part also.
Then I have a question from Anonymous. Can you provide some Excel template for the financial health status, and also 30 minutes call session free for all attendees? Sir, at any given point of time, you can definitely call and we can give you a sir, क्योंकि मैं यहाँ पे already पैसा कमा के बैठी हूँ. This is the passion working. So even if you take a good advice from me and you implement it on yourself also, मेरे को कोई problem नहीं है. You do it on your own, but you give value added to your clients. This is something what I would really urge for. Ma'am, can you guide me? Dhananjay sir पूछ रहे हैं. Ma'am, can you guide on how to invest in NCDs, bonds, or the funds with fixed rate of interest? Definitely, sir. अब इसमें भी समझ में ये आना चाहिए कि अगर हम वो आपको एडवाइस कर रहे हैं तो आर यू लुकिंग आउट फॉर अ लॉक इन पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आप लॉक इन पीरियड पैसा रखने में इंटरेस्टेड है तो वी कैन एडवाइज यू. फंड्स में कभी भी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होएगा, गारंटी कभी नहीं आता सर. आजकल तो एफडी पे भी से गारंटी हटने लग गया है. तो गारंटी ये वर्ड अगर आप लेके आओगे वो कभी नहीं मिलेगा. देन आई एम अ बैड चॉइस फॉर यू. Any more questions? Thank you very much for your compliments I have received through chat, and it actually boosted my morale to give more suggestive sessions on wealth management, which can actually help each and every one of us to retain our clients. Well, lot of questions answer was there, as I earlier said that everybody wants to maximize his or her wealth and also his or her client. So I was, as expected, lot of question and answer were there. If if anybody is having more question, you may contact Aarti madam personally on his cell number. Aarti, I think you have already shared your cell number. Right. Is Mr. Shashikant Lonikar is there? Lonikar sir, I request you for formal vote of thanks. Okay, thank you. Thank you, Aarti, for enlightening all of us on this subject. This will help all of us to serve our clients who are interested in investing, as well as to ourselves also. Though we all are experts in finance, this session has given all of us a deep dive in the subject. Most of our clients who often questions us where to invest their extra or excess funds, and this session has given insight in the subject to all of us. Thank you very much again. Over to Karan. Well, thank you, Shashikant sir. Before we conclude today's session, I have one announcement. Just before 10 minutes, we have made the tie-up with the Rao Nursing Hospital of Pune, which is located near to Pune ICI, for COVID-19 injections for the members of ICI and immediate relatives of the members of Pune ICI. We will mail details and send the SMS and also the upload on website. So if anybody of you want to take the vaccinations, or for either for yourself or for your close relatives, that is family members, you can contact to branch. Thank you very much. We will conclude now. Thank you all participants for nice participation. Thank you. Thank you everyone for giving your valuable inputs for the session. Thank you.